Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from the Hindu and Indian Express. So we'll try to cover the most important news that is reported in the newspaper. So first, starting with the today's article list. So this is the topic list for today. Today is 12th of November. So the first topic is government to govern OTT platform. So this is with regards to the regulation of the OTT platform. Now the second is 17th India ASEAN Summit. This is again important development. The third topic is consequences of the coal mining. The second last topic is effectiveness of Sputnik 5 vaccine, which has been developed by Russia. And the last topic is amendment to the FCRA. So the recent regulation in terms of the FCRA contributions. So these are some of the important topics of the day. Apart from this, I'll be also discussing some MCQs question at the end of this video with the explanation of previous day questions. So stay tuned till end of this video so that you could practice some important questions. And those of you who are looking forward for the upcoming prelims examination, that is 2021. So what you can do, you can enroll yourself for the mock test series where you can get 60 high quality questions. In total, you will be getting 6,000 prelims questions, right? So this we are offering at the discount. So you have to just check the description section of this video from where you can register and get the benefits of it. Now coming to the news, the first news, that is government to govern the OTT platform. This has been reported in the Hindu, and this is again very important news for your gender studies paper 3, and it will be somewhere contributing to the gender studies paper 2 as well. OTT platform in general is again relevant for the prelims examination also. So recent decision, the union government has decided to regulate the OTT, that is over the top platform. So this would be through like all the OTT platform or the video streaming services that is being provided now, that would be coming under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting. तो Ministry of INB जो है अब उसके अंदर उसके रेगुलेशन के अंदर सारी OTT प्लेटफॉर्म आएगी. इससे पहले जितनी सारी जो OTT प्लेटफॉर्म हुआ करती थी, that used to be come under the Ministry of Electronics and Information Technology. Now the sole ministry has been allocated and this would be the complete jurisdiction under the मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पहले से भी बात हो रही थी कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को कंट्रोल किया जाए. आफ्टर कोविड-19 दिस प्लेटफॉर्म हैज़ टेकन अ ह्यूज डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द व्यूअरशिप ऑल्सो. सो इट वॉज इनिशियली नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू मेक सम रेगुलेशंस. ना OTT प्लेटफॉर्म और वीडियो स्ट्रीमिंग्स की बात करें तो इंडिया में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इसके थ्रू स्ट्रीम्स किया जाता है. सो OTT इज बेसिकली एन इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विसेज विच इज डन ओवर द इंटरनेट. यू रिक्वायर अ हाई स्पीड इंटरनेट टू गेट इनटू द OTT. Now currently there is no law or autonomous body governing the digital content. So specifically talking about India, ये इंडिया के लिए काफ़ी न्यू है. पिछले 4-5 सालों में इसकी जिस तरह से प्रचलन बढ़ी है, पहले नहीं थी, बट इट इज़ इनिशियली रिक्वायर्ड कि एक कोई लॉ बनाया जाए. लॉ अभी भी नहीं बनी है बट ओनली रेगुलेटरी बॉडी हैज़ बिन प्रोवाइडेड. तो स्टिल वी डू नॉट हैव एनी लॉ, ना ही कोई ऑटोनोमस बॉडी है, बट दिस वुड बी फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. Now this is an infographic which will help you understand किस तरह से इंडिया में OTT landscape है. So there are about 30 OTT players in India. छोटे बड़े मिला करके टोटल 30 players है, and India is set to become the top 10 OTT video market in the world in the 4 year. Coming 4 years में इंडिया एक top 4 के अंदर में आ जाएगी. और OTT viewership की अगर बात करें इंडिया में, so this is 355 millions. And the revenue which it has generated is 2,119 crore rupees. एंड बाय 2022 इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 5,500 के आसपास की करोड़ की बिजनेस करेगी. ना दिस इज OTT रेवेन्यू बाय रीच. सो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के एग्जांपल दिए हुए हैं. अगर मैं आपको चाइना के बारे में बताऊं, सो चाइना कॉन्ट्रीब्यूट 76% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इन 2021. And India, the online advertising has reached to $1 billion by 2021. So this is a platform which has a huge potential in terms of revenue creation and generation, right? So this is something other countries, Southeast Asia, South Korea, Japan. Japan is almost with a user penetration of 14.23%. And OTT advertising जो हमारी उसमें advertisement होती है present में, that is a main source of revenue that accounts for
$8,745 million, right? So this is a business which OTT is working. So that is it. That is a need that it is required to regulate this OTT platform. This is not only for the viewership, but at the same time, it is also for any fraud and anything that could happen in the OTT platform, any mishappening that could happen. So government has taken action and make this OTT platform under the Ministry of Information and Broadcasting. Now, how important is this decision? जो सरकार ने डिसीजन लिया उसकी क्या अहमियत होगी आने वाले समय में? So the decision will give government control over the OTT platform, and it was highly unregulated till now. Now this is for the first time that government has indicated the necessity to monitor this platform. और अक्टूबर में ही इसको लेकर के इंडिकेशन दी गई थी कि जितने भी नेगेटिव्स जिस तरह के एपिसोड्स है या जो वीडियो स्ट्रीमिंग है उनको, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर हॉटस्टार हो, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी ताकि बेसिकली जो सिटीजन है या जो राइट टू बेसिकली लिबर्टी है या राइट टू वॉइस है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो. नाउ it also wanted to come up with a self regulatory body. जिस तरह से हमारे पास न्यू ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, NBSA है. सो दिस इज अ बॉडी विच रेगुलेट द TRP इन इंडिया, राइट? तो उस तरह की कोई भी रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास नहीं है. मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में फंक्शन करती है. तो अगर OTT कोड की बात करें तो जनवरी में ही इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कुछ कैटेगरीज को प्रोहिबिट किया था कि ये सारे कैटेगरीज हैं जिनके कंटेंट OTT पे प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं होंगे. दिस इंक्लूड द एनी डिसरिस्पेक्ट शोइंग टू द नेशनल एम्बलम. हमारे नेशनल एम्बलम के प्रति अगर कोई डिसरिस्पेक्ट किसी एपिसोड में दिखाई जा रही है, दैट वुड नॉट बी कंसिडर. एनी विजुअल और स्टोरी लाइन प्रमोटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, राइट? सो एनीथिंग which impacting the child health or can lead to the another level of child pornography, that would be strictly prohibited in the OTT platforms. Now, other prohibited content in the OTT platform includes any outrage religious sentiment that is impacting any religions, deliberate or maliciously that would promote encourage terrorism. कोई भी ऐसी एपिसोड जो terrorism को प्रपोर्ट करती है, so that things would be completely banned. और उसके जो एग्जीबिशंस है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, that would be taken into the court of law and a strict action would be taken against that OTT platforms, right? Now, डिफरेंट रेगुलेटर्स की अगर बात करें इंडिया में तो कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स आपके लिए जानना ज़रूरी है. सो इंडिया में जो प्रेस है दैट इज बीइंग कंट्रोल अंडर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दैट लुक इनटू द प्रिंट मीडिया. सो प्रिंट मीडिया के लिए हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसको PCI के नाम से भी जानते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द TV चैनल्स, वी हैव न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन NBA, which is a nodal body which take care of the TV news channels. Now the other body, that is Advertising Standard Council of India. This is for all the advertisement that is being published in India or that is being broadcasted in India. And the last is Central Board of Film Certification. This is known as CBFC, which monitor the films. So these are some of the important regulators that is presently working in India and under which some of the different domain are also functional, right? तो ये different regulators के बारे में भी जानना आपके लिए ज़रूरी है. Now coming to the other news, that is 17th India ASEAN Summit. So the Prime Minister would be co-chairing the ASEAN Summit, and this is important for your General Studies paper 2. General Studies के paper 2 जहाँ पे IR section है वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी important है. और summit is always important for your prelims examination. So the Prime Minister of India will co-chair the virtual summit. And this would be with the 10th all the 10th ASEAN member. They would be also participating in it. And this is the 17th edition of the summit, right? So if we talk about the number, many times in examination they tend to ask which number was this. So this was the 70th number. And the summit would focus on measures to recover the economic turmoil that was because of the COVID-19, because of the pandemic. Many economic has seen the downtrend. और जो GDP की जो growth है या जो overall economic growth है, that is not very well. So किस तरह से क्या बेस होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये डिस्कस की जाएगी जितने भी ASEAN के मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ, राइट? Now coming to the focus area of the summit, क्या क्या focus area होगी? So according to the Ministry of External Affairs, जो summit है that would focus on the ASEAN India strategic partnership,
चाहे वो स्टॉक प्रोग्रेस की बात हो, कनेक्टिविटी हो, मैरीटाइम कॉपरेशंस हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो, एजुकेशन हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो. These would be some of the core area among which India would be having focus. Now the summit would also take place when the time the China की जो एग्रेशन की अगर बात करें, खास करके ईस्टर्न लद्दाख में जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जिस तरह से जो प्रॉब्लम हुई है वो, उसके अलावा जो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी है वहाँ पे भी चाइना ने अपनी डोमिनेंस बनाई हुई है. सो दीज थिंग्स वुड बी अगेन टेकन इनटू द कंसिडरेशन. एंड सेवियर जो आसियान के मेंबर्स है, दे हैव टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ रिगार्ड्स टू द साउथ चाइना सी. चाइना के साथ जो साउथ चाइना सी में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, चाहे वो स्पार्टिल आइसलैंड हो या 10 डिग्री चैनल्स हो या और भी बहुत सारे ब्लॉक्स में जो वहाँ पे आइसलैंड है, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दे वुड हैव टेकन इनटू द एक्शन. और जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए भी बात की जाएगी. Now the leader will also discuss the strengthening ASEAN-Indian agreement in context of the note appropriated of the ASEAN Pan Action Plan, जो एक एक्शन प्लान जनरेट कर रही है इंडिया फॉर 2021 टू 2025, सो दैट कि जो एक रिलेशनशिप है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है आसियान मेंबर कंट्री के बीच में, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके. राइट नाउ थोड़ी सी मैं आपको आसियान के बारे में बता दूं. दिस इज अ रीजनल ग्रुपिंग विच प्रमोट पॉलिटिकल सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक, political and security cooperation. It was established in 1967 in Bangkok, which is in Thailand. और इसको बेसिकली जो डिक्लेरेशन बोली जाती है आसियान डिक्लेरेशन को बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है. तो प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. सो यू हैव टू इंश्योर कि आप दोनों नाम जानते हैं. और जो इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड. नाउ अब प्रोविंशियल अगर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे US, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ आसियान के डायलॉग पार्टनर्स हैं. और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया ये इसके प्रॉपर मेंबर कंट्रीज. राइट, तो आपको मेंबर कंट्रीज और जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उनके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडियाज इंडो पैसिफिक टारगेट. इंडिया ने कुछ इंडो पैसिफिक रीजन पे अपने टारगेट्स रखे हुए हैं एंड इंडिया वांटेड कि इस तरह की जो रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और किसी एक कंट्री का डोमिनेंस ना हो. सो इंडिया was one of the country which welcomed the ASEAN Outlook Indo-Pacific region, and a lot of common owns has been done in the Indo-Pacific vision which was being generated. और इंडिया चाहता है कि there should be a strong, unified and prosperous ASEAN paving way to the Indo-Pacific region. और जिस तरह से अगर बात की जाए फोकस की, तो सबसे बड़ी जो फोकस होगी दैट वुड बी द रिजर्वर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाई ग्लोबल ट्रेड, फ्रंटियर साइंटिफिक रिसर्च, कॉपरेशन इन द मैरिटाइम डोमेन. और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें तो दैट वुड बी बिकमिंग इंक्रीजिंग अंडर द ओवरऑल रूब्रिक ऑफ द इंडियन आसियान कॉपरेशंस. तो इसके अलावा ये कुछ कोर सेक्टर्स हैं जो डिफाइंड है, जिन पे इंडो पैसिफिक रीजन पे काम करने की ज़रूरत है और ओवरऑल जो कॉपरेशन है वो भी बूस्ट होनी चाहिए. And with Indo-Pacific gaining a salience in the global discourse, both India and ASEAN want to achieve the new strength, right? तो जितने भी आसियान मेंबर कंट्रीज है उनके साथ एक अच्छी बायलैटरल रिलेशनशिप बनाई जाए, इकोनॉमिक ट्रेड किया जाए, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या और भी कोई ऐसे बायलैटरल डायलॉग हो जहाँ पे दोनों कंट्री म्यूचुअली बेनिफिट हो सकती है, उस तरह पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैरीटाइम बॉर्डर डेवलपमेंट्स की भी बात की गई है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो आसियान और इंडिया दे हैव शेयर्ड द मैरीटाइम बॉर्डर्स और अ लॉट ऑफ देयर हैज़ टू बी डन इन टर्म्स ऑफ इन्हांसिंग द कनेक्टिविटी. जहाँ तक कनेक्टिविटी इन्हांस करने की बात की जाए, चाहे वो एयर हो चाहे सी हो, इस जगह पे काम करने की ज़रूरत है. एंड इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इज ऑल्सो एन ऑन गोइंग एफर्ट, जहाँ पे अगर ये बन जाती है इट वुड बी इन्हांसिंग द कनेक्टिविटी, राइट. सो ऑल नॉर्थ ईस्ट इंडियन वुड बी कनेक्टेड बाय द साउथ ईस्ट एशिया. सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल विच यू कैन कोट इन द एग्जामिनेशन. Now there is a good air connectivity between India and several Asian countries which include Thailand, Singapore, Malaysia and Indonesia. तो इन कंट्री के बीच में इंडिया के साथ काफ़ी अच्छी एयर कनेक्टिविटी भी है. Now last year इंडिगो और विटीजेट नाम की जो एयर सर्विसेज हैं इंडिया और वियतनाम की, उन्होंने भी कोलैबोरेट किया है ताकि पैसेंजर को हैजल फ्री और बजट में ट्रैवल मिल सके, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Now coming to the other topic, this is from the Indian Express, that is the consequences of the coal mining.
So despite all the actions by the Supreme Court, coal mining अभी भी ग्रीन क्लियरेंस पे चल रही है, तो उसके लेकर के कुछ कंसर्न बताई गई है इस आर्टिकल में. So this is important for your general studies paper 3. So recently the mining case has been reported in the Gher Palma area of the Tamnar Tehsil. This is in the Rajgarh district of the Chhattisgarh. और ये तब आई है इस तरह की न्यूज़ जबकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उन्होंने पब्लिक हियरिंग मना कर दिया था, और ICMR की जो अपनी रिसर्च है माइनिंग को लेकर के और उसके क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं ट्राइबल पीपल पे, उसके बारे में रिपोर्ट भी आई. उसके बावजूद भी माइनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे जारी है. तो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट फॉर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फॉर लैंड एंड क्लाइमेट चेंज है MOEF है, उन्होंने एक क्लियरेंस फैसिलिटेट की थी गेर पाल्मा रीजन पे जो कि छत्तीसगढ़ में आती है, एंड दिस हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट. एंड द मूव कम डिस्पाइट द NCST ऑर्डर की जो पब्लिक हियरिंग उसको डिफर कर दिया, और ICMR ने जो कोल माइनिंग पे जो हेल्थ इम्पैक्ट है ट्राइबल पीपल के उसके बारे में भी एक पूरी रिपोर्ट दी है. नाउ क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं माइनिंग के. सो द गवर्नमेंट हैज स्पॉन्सर्ड द स्टडी दैट द एयर एंड द वाटर रीजन इज पॉल्यूटेड. जिस तरह से वाटर लेवल की पॉल्यूशन हो रही है, एयर की पॉल्यूशन हो रही है, और पॉइंटिंग आउट टू द इंक्रीज प्रिवलेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेज अमंग द विलेजेस. तो जो विलेजेस हैं उनको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा उभर के हो रही है इस बार के कोल माइनिंग से. एंड दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच हैपेंड एंड इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ पीपल. नाउ ICMR के रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो कंट्री में ऑलमोस्ट एक डिटेल्ड इंक्वायरी की गई थी इस एरिया पे, जहाँ पे उन्होंने पाया कि अभी भी डेप्रीविएशन है राइट टू सेफगार्ड, और शेड्यूल्ड ट्राइब को इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, दे हैव सेड कि विलेजेस इन द रीजन हैव अप्रोच द कमीशन टू एडवर्स द सोशल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग. जहाँ पे वो जो रीजन है दैट इज नोन एज महागेनको, एक ये प्राइवेट कंपनी है दैट इज ऑल्सो दे हैव गॉट द लाइसेंस टू माइन द कोल एरिया ऑफ द गेर पाल्मा रीजन इन द सेक्टर 2 ऑफ द छत्तीसगढ़. और ये गुजरात की सेंट्रल एक एजेंसी है जो इस पे काम कर रही है. दिस इज अंडर द माइनिंग लाइसेंस ऑफ द गेर पाल्मा सेक्टर 1. तो इनको सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के लिए लाइसेंस दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दिया, जिसका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट वहाँ के ट्राइबल पीपल पे देखने को मिला है. Now coming to the health risk, what are the health risks to the tribal people? जो रिपोर्ट दी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ जो ICMR ने कंडक्ट किया था, उनके मुताबिक ऑलमोस्ट 42.7% ऑफ द प्री चिल्ड्रन वेयर अंडरवेट, जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज है सिर्फ और सिर्फ कोल माइनिंग. एंड ओवरऑल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है 20.9% जो उस एरिया में जो कोमॉर्बिड चिल्ड्रंस है उनके लिए. Now the study has also objected to find the morbidity, mortality और nutritional status जो है तमनार ब्लॉक की, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिले हैं. एंड ड्यूरिंग दिस सर्वे 2019-20 में जो सर्वे की गई थी उसमें ये पाया गया कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रेवलेंस है, दैट आई हैव टोल्ड यू नंबर 20.9%. एंड दिस वाज मच हायर देन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस जो रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ की, जो ओवरऑल रिपोर्ट है उसमें सिर्फ 2.2% दिखाया गया लास्ट पिछले 2 हफ्तों में, बट यहाँ पे ये जो रेशियो है 20.9% की है. एंड दिस रीजन कुड बी ड्यू टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स विच इज इम्पैक्टिंग देयर. Now coming to the suggestions by the NCST जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके मुताबिक, उनके ऑफिशियल के मुताबिक, ये जो स्टडी है दैट फोकसेस ऑन इकोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, जो कि उस रीजन में ऑर्डर की गई थी 2018 में कि किसी इस तरह के जो चीज़ों हैं खास करके फ्लाई ऐश है, इस तरह के डिस्पोजेबल आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और जो ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी उसकी स्टडी की जाए, ताकि जो ग्राउंड वाटर में कोई भी ऐसे हार्मफुल मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, लीड है, ये सारी चीज़ों को लोगों को फिर फिल्टर करके दिया जा सके, राइट. सो दिस वर सम ऑफ द सजेशन दैट वर बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द NCST. Now coming to the other news, that is effectiveness of the Sputnik 5 vaccine. रशिया ने कहा है कि हमारी जो वैक्सीन है वो 92% इफेक्टिव है, जिस तरह से फाइजर ने कल कहा था कि उनके जो वैक्सीन है दैट इज 90% इफेक्टिव, राइट. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3. सो अकॉर्डिंग टू द रशिया हेल्थ मिनिस्टर, जो कि स्टेटमेंट आई है स्पुतनिक 5 वैक्सीन की तरफ से, उनके मुताबिक 92% की एफिकेसी देखी गई है इस वैक्सीन में,
और जो ट्रायल कंडक्ट किए गए थे, एंड दिस इज द 92% एफिकेसी इसका इन द फेज 3 ट्रायल। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज में नहीं बल्कि फेज 3 में, फेज 3 के बाद कोई स्टेज नहीं बचती है। And this trial was conducted in 20,000 people for the first dose and 16,000 for the second dose who got the result in the 14 days apart. Now efficacy की अगर बात करें, so this is split into the placebo group, जो कि vaccinated 92% लोगों में ये पाया गया कि this is pretty safe. And this efficacy percentage has claimed by the Pfizer, जिन्होंने mRNA जो थे उनके जो वैक्सीन, उन्होंने कहा कि उनकी एफिकेसी 90% है। तो इस डेवलपमेंट में अभी चल रही है बात, अगर एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन की करें तो देखना होगा उनकी कितनी एफिकेसी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो देयर इन द फेज 3 ना। मल्टीपल ट्रायल्स हैं पूरे वैसे विश्व भर में। सो रशिया हैज़ ऑन गोइंग मल्टीपल ट्रायल एंड फेज 2 और 3 ट्रायल्स की अगर बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्यून रिएक्शंस देखे गए हैं, एंड देयर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया आर ऑल्सो गोइंग विद एनी ऑफ द इन्फेक्शंस। हैदराबाद बेस्ड जो डॉक्टर लेटी रेबोलेटरीज है, वहाँ पे रशियन गवर्नमेंट ने जो गैलमिया रिसर्च फाउंडेशन है उनके साथ मिल करके डेवलप किया था स्पुतनिक 5 वैक्सीन को, राइट। सो गैलमिया रिसर्च फाउंडेशन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि वहाँ पे काम कर रही है। उनकी पेरेंट एकेडमी है जो कि स्पुतनिक 5 पे काम कर रही है, और इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है। Now coming to the other topic, that is amendment to the FCRA rules. गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ अमेंडमेंट किए हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेकर के। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 2, राइट। Now the Ministry of Home Affairs has recently relaxed the FCRA norms. किन किन लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, रिलीजियस ग्रुप्स के लिए, जो कि डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होंगे या ना ही किसी एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, इन लोगों के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एग्जेम्प्ट किया गया है, अलाउ किया गया है, और यू कैन से बेटर दिस रिलैक्स्ड। नाउ क्या है लेटेस्ट अमेंडमेंट? सो द मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 की, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, और जो नई रूल है वो 2011 वाली एप्लीकेबल होगी। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कुछ जो क्लाउजेज हैं जो FCRA के, दैट इज क्लाउज 5 और क्लाउज 6 सबसेक्शन 1 रूल ये कहता है कि इट शुड बी कंसिडर्ड दैट एनी पॉलिटिकल नेचर इफ पार्टिसिपेट इन द एक्टिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन केस मे बी, राइट। तो जो भी अगर किसी भी एक्टिविटीज़ में, इस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एग्जेम्प्टेड होगी। और जो क्लाउज 5 है ऑफ रूल 3, दैट सेज कि क्वालिफाइड पॉलिटिकल ग्रुप सच एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर, वर्कर, स्टूडेंट, यूथ बेस्ड, कम्युनिटी, रिलीजियस एंड अदरवाइज विल नॉट बी डायरेक्टली अलाइंड टू द एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए किसी भी पार्टी से अलाइंड नहीं रहना होगा, किसी भी तरह से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं रहना होगा। ना व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो ये बेसिकली एक डोनेशन है जो कि फॉरेन से लोगों को दी जाती है, बट एट द सेम टाइम इससे किसी भी तरह से हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एंड दिस एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1976 बेसिकली, और उसको अमेंडमेंट लाई गई 2010 में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर लेती रहती है, एंड दे चेंज द रेगुलेशन विच इज देयर इन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एंड इट वाज अगेन अमेंडेड इन सितंबर 2020। सो द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द ऑल एसोसिएशन, जितने भी NGOs हैं उन सारों पे ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है। और जो प्रोहिबिटेड मेंबर्स हैं उनके एज पर द FCRA, सो ऐसे लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जजेस, मीडिया पर्सन, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इनको पूरी तरह से प्रोहिबिट करती है FCRA की रेगुलेशन। नाउ कमिंग टू द आंसर्स, जो कल के क्वेश्चन थे उसके आंसर मैं आपको बताऊँ। So for the first question, the correct option here is B, that the impeachment charges can be initiated by the either house of the parliament. The elected member of the Legislative Assembly of the Houses and Union Territory of Puducherry can participate in the impeachment process of the president. And the impeachment of the president is a quasi-judicial procedure, right? तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे 2 ही पूछा था, बट एक्सप्लेनेशन मैं आपको हमेशा थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीड इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत, जहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। Now coming to the second question, here the correct option is C. Under the PCA, the bank is mandated to cut the lending rate of the reducing concentrated loan to the certain sector, and PCA are regulated by the RBI. So this is the financial indicators like the ethical adequacy, NPA versus beyond the level, and PCA is also restrict from opening the new branches and paying the dividends. So the source of reference here is PIB and the Hindu.
Now let's move ahead to the today's MCQs question of the day. So the first question is from the culture. Vijayanagar painting evolved pictorial language, figure and object of the two-dimensional, and Trichy is the capital of the new Vijayanagar dynasty, right? So which among the following is the correct option? A, B, C or D? So whatever you feel is the correct answer, just write your answer in the comment section down below. And the second question is from the modern history with reference to the Charter Act of 1600. Consider the following statement. It granted East India Company the exclusive privilege of trading to the Cape of Good Hope, and the governor of the company would be the sole administrator of the charter, right? So just choose the correct option A, B, C or D, and you can write your answer in the comment section down below. If you have any additional information with regards to the Charter Act of 1600, that also you can share with us in the comment section. So do participate, write your answer in the comment section. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Academy for Civil Services for more informative videos and compilations. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.